Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to do exercise 4.1, question number 9. The question is this, that they are saying that find a polynomial whose factorized form is this. So this is the factorized form and we have to find polynomial by using appropriate formula. Okay. So if you look at this question, in this question x plus y is same. ठीक है, these variables are same and their signs are also same. ठीक है, so x plus y is same. ठीक है, but this 2c is also same with opposite sign. ठीक है, x plus y minus 2c and then again x plus y plus 2c. Okay, so as you know very well that it makes formula of a minus b and a plus b. ठीक है, बिकॉज आपके पास दोनों में x प्लस वाई सेम है. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया a और यहाँ पे 2c सेम है और ये हमारे पास आ गया b. ठीक है, सो सेंटर में इसके नेगेटिव साइन है, ये हो गया a माइनस बी. इसके सेंटर में पॉजिटिव साइन है, ये हो गया हमारे पास a प्लस बी. ठीक है, सो दिस विल मेक फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी a प्लस बी. एंड एज यू नो दैट a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो सिंपली वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, we are going to use the formula of a square minus b square. You'll write a square. What is a? A is x plus y. So x plus y square minus b square, that is 2c whole square. ठीक है, so we got the formula of a square minus b square. Okay, then we can see that this is a plus b whole square. So let's open its formula. You know very well that a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. ठीक है, let's write it again as well. A plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Okay, so a square means x square. ठीक है, b square means or 2ab means 2 into x into y plus b square is y square. Then 2 का square हो जाएगा 4 and c square. ठीक है, so x square plus 2xy plus y square minus 4c square. ठीक है, so this is the required polynomial. ठीक है, as factorized form was given and they were asking for the polynomial by using the formula. So we have used formula wherever they were necessary. ठीक है, and now this is our required polynomial. Okay, let's move toward next question, question number 10. In the question number 10, they are saying that show that this expression as difference of two squares. ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, हमने क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है कि जो उसका आंसर है वो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स हो. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. Okay, again you can see that we cannot take anything common. ठीक है, और we are going to combine three terms. So अगर आप ये देखो तो ये x square y स्क्वायर और ये एक्स वाई. ठीक है, सो वी गोइंग टू कंबाइन दीज थ्री टर्म्स. ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy. ओके, माइनस जेड स्क्वायर. ठीक है, अच्छा अब आपके पास वी हैव टू परफेक्ट स्क्वायर्स. ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और दूसरा 4y स्क्वायर है. ठीक है, ओके, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर, बिकॉज 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और y स्क्वायर y का स्क्वायर है. ठीक है, ये हमारे पास आ गया है a स्क्वायर. ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? b स्क्वायर है. ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या नेक्स्ट टर्म 2ab है या नहीं है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट 2a from here, that is x, and b from here, that is 2y. ठीक है, and we are going to multiply it and cross check. ठीक है, ये आपके पास क्या है? 4xy they are same. It means that it is going to make formula of a plus b whole square. ठीक है, what is a? A is x and b is 2y. So x plus 2y हमारे पास बन जाएगा a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? z स्क्वायर. z स्क्वायर किसका स्क्वायर है? z का स्क्वायर है. ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर. सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज दिस दैट यू हैव टू राइट आंसर एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स. ठीक है, तो यू कैन सी दैट दिस इज द डिफरेंस, माइनस को हम डिफरेंस बोलते हैं. ठीक है, और ये आपके पास दो स्क्वायर्स हैं. ठीक है, ये भी आपके पास x प्लस 2y भी स्क्वायर है और z भी स्क्वायर है. ठीक है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. Okay, students, let's move toward next question, that is question number 11. You have to find the missing factor in the following questions, following parts. There are two parts of this question. ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है? 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू, और ये आपके पास उन्होंने एक फैक्टर बता दिया और दूसरा फैक्टर आपने फाइंड करना है. ठीक है, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो फैक्टराइजेशन का मेथड पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं ब्रेकिंग मिड टर्म मेथड. ठीक है,
लेकिन ये कि जिनको नहीं आता उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम किस तरह से फैक्टराइज करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन है 2y² माइनस 3y माइनस 27। देयर आर फ्यू स्टेप्स ऑफ दिस क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने याद करते हैं, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो ये है कि आपको जो जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो अरेंज होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले y², फिर y, और फिर उसके बाद कांस्टेंट, ठीक है। तो आपने ये चेक करना है कि ये अरेंज फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन अरेंज फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद जो y² का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, जो कि 2 है, यहाँ पे 2 को आपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -27 से तो हमारे पास आ जाएगा -54, ठीक है, -54। अब इसका जो नेगेटिव साइन है ये ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है। अब नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? आपने ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 54 आए और जिनको सब्ट्रैक्ट करके 3 आना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आंसर प्लस करके आता है, कुछ माइनस करके आता है। हमें कैसे पता चलता है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, ठीक है। तो आपने 54 के फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और हमें ये बात इस साइन से पता चलती है कि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है, ठीक है। सो माइनस साइन रिप्रेजेंट्स दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फैक्टर्स ऑफ 54 टू गेट 3 -3, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम 54 के फैक्टर्स बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो अब हम फैक्टर्स बनाते हैं 54 के, ठीक है। तो अब अगर हम बनाए फैक्टर्स तो 1 इंटू 54 इक्वल टू 54, ठीक है। अब 54 -1 तो 3 हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू 27, ठीक है। तो वो भी हमारे पास 54 आता है, ठीक है, बट 27 - 2 इज ऑल्सो नॉट 3, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स 18, ठीक है। तो वो भी हमारे पास 54 है, लेकिन 18 - 3 भी हमारे पास 3 नहीं होता, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे फैक्टर्स चूज करने हैं जिनसे माइनस करके 3 आए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 9, 4 5 आप चेक करने, उसमें डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 54, 6 9 ज़ा 54, ठीक है। और 9 - 6 होता है 3, ठीक है। अब 9 - 6 3 है, बट हमें ये चूज करना है, हमने चेक करना है कि हमें क्या आंसर चाहिए। हमें आंसर चाहिए -3, हमें +3 आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए नेगेटिव साइन शुड बी विद द बिगर नंबर, ठीक है। 9 के साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए, 6 के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिगर नंबर के साथ नेगेटिव साइन होगा। अगर आप साइन मिस्टेक करेंगे तो आपका क्वेश्चन फिर यहीं से रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अब आप ये देखिए आपके पास क्या है, और अगर इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूँ वाइट के टर्म में, ठीक है। हमें चाहिए एक्चुअल में -3y। सो अभी देखो -9y + 6y इज -3y, ठीक हो गया। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, -9y मल्टीप्लाई बाय 6y, ठीक है, ये हो जाएगा -54y², और हमें यही चाहिए था, -55y² चाहिए था, ठीक है। सो अब जब इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y² -9y -6y -27, सॉरी यहाँ पे +6y आएगा, ठीक है। ओके, अच्छा। अब आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि हमने पहले 9 लिखना है या बाद में 9 लिखना है, 6 लिखना है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन आपने सही लगाना है, ठीक है। बिगर नंबर के साथ ही नेगेटिव साइन होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आता है, ठीक है। अब 2y² -9y में सिर्फ y कॉमन आ रहा है, ठीक है। वी आर गोइंग टू टेक y कॉमन, ये आ जाएगा बस 2y -9, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपके पास 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3 2 टाइम्स इज 6, y -3 9 टाइम्स इज 27। अब ये देखो इन दोनों टर्म्स में 2y -9 और 2y -9 क्या है, सेम है, ठीक है। सो हम यहाँ पे 2y -9 को कॉमन लेंगे, तो जब 2y -9 कॉमन हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, y, ये प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमने फाइंड करना था मिसिंग टर्म कौन सी है, ठीक है। आप ये देखो y+3 क्या है, दे आर सेम, ये दोनों आपके पास सेम है, ठीक है। तो मिसिंग टर्म क्या है, ये है 2y -9, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम सारी वर्किंग शो करके यहाँ पे 2y -9 लिख देंगे, ठीक है। तो जो मिसिंग फैक्टर हमारे पास जो नहीं हमारे पास गिवन था, ठीक है, जो हमने फाइंड करना था, दैट इज 2y -9, एंड दिस मेथड इज नॉन एज ब्रेकिंग मिड टर्म मेथड। इसको फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको ब्रेकिंग मिड टर्म मेथड करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने मिड टर्म को ब्रेक करके लिख दिया। अब ये आपने नहीं सोचना कि ये 2y² का, ये 2y² हमारे पास एज इट इज आया है, ठीक है। 27 हमारे पास एज इट इज आया है, ठीक है। चेंज हमने क्या किया है, ब्रेक क्या किया है, हमने मिड टर्म को ब्रेक किया और उसको हमने ब्रेक करके लिखा है इस फॉर्म में कि मल्टीप्लाई करके 54 आए और सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 3y आए, ठीक है।
ओके, लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है? 5x² प्लस 12x-9। अगेन वी हैव टू फाइंड मिसिंग फैक्टर। एक फैक्टर गिवन है, दूसरा फैक्टर हमने फाइंड करना है, ठीक है। मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड भी एक्सप्लेन भी किया है कि स्टेप नंबर 1 क्या होता है, दोबारा से देख लें। स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि आपने चेक करना है कि अरेंज फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। सो दिस इज ऑलरेडी इन अरेंज फॉर्म। अरेंज फॉर्म क्या है? आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में x² पहले होता है, फिर x होता है, फिर कांस्टेंट होता है, ठीक है। आपने x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ, ठीक है। और ये आंसर आपके पास आ रहा है -45, ठीक है। अब आपने चेक करना है ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन कौन सा होगा? दो जो फैक्टर्स होंगे 45 के, उनका आंसर सब्ट्रैक्ट करके 12 आएगा या ऐड करके आएगा, ठीक है। सो माइनस साइन मीन्स दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है। हमने दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर 12 आना चाहिए, ठीक है। ओके, सो अब हम फैक्टर्स बनाते हैं 45 के, ठीक है। 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू 45 इज इक्वल टू 45, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास 2 पे डिविजिबल नहीं है 45, बिकॉज आपको पता है कि डिविजिबिलिटी रूल में 2 में क्या होता है? 0 2 4 6 8, जिसके एंड पे आ रहा हो वही 2 पे डिविजिबल होते हैं, ठीक है। हम चेक करेंगे 3, तो 3 15 टाइम्स इज 45, ठीक है, ओके। अब हम चेक करते हैं कि 15 माइनस 3 12 होता है या नहीं। यस, 15 माइनस 3 इज 12। अब हमें चेक करना है साइन। हमें क्या चाहिए? हमें +12 चाहिए, ठीक है। ये क्या है? +12 है। अब +12 तभी आएगा जब आपके पास 15 यानी बिगर नंबर के साथ प्लस का साइन होगा और स्मॉलर नंबर के साथ नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। तो हमारे पास 15 माइनस 3 आ जाएगा 12, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपने चूंकि 12x को ब्रेक करना है, तो यू विल राइट 15x माइनस 3x, ठीक है। और आपका आंसर आ जाएगा 12x। सो हमने इसको इस तरह से ब्रेक करना है, ठीक है। अब आपके पास जो फर्स्ट टर्म है, वील राइट इट एज इट इज, 5x² एज इज लिखेंगे और ब्रेक इसको करेंगे हम, 12x को ब्रेक करेंगे और 12x को ब्रेक करके हम क्या लिखेंगे? 15x माइनस 3x -9 एज इट इज आएगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्डर से कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। आप 15 पहले लिखें, आप 3 पहले लिखें, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5x² 15x, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 5x कॉमन है, ठीक है। 5x आप कॉमन लेंगे, यू नो दैट 5 1 are 5, ठीक है, वी डोंट राइट 1 विद इट। और x² में से x कॉमन लेंगे तो एक x रह जाएगा, ठीक है। देन 5 3 टाइम्स इज 15, x कॉमन लेंगे बाहर आ जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 3x और 9 बल्कि नहीं है, सॉरी, 3 कॉमन लेना है, ठीक है। हम 3 कॉमन लेंगे यहाँ पे और ये आ जाएगा आपके पास x plus 3। Okay, now you can see that in these two terms x plus 3 is same, ठीक है। So we are going to take x plus 3 common, ठीक है। x plus 3 common लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 5x minus 3, ठीक है। So this is the factorized form of 5x square plus 12x minus 9. Okay, what was given? x plus 3 was already given, so x plus 3 ये है and missing one क्या है? That is 5x minus 3, ठीक है। So we are going to write 5x minus 3 over here, ठीक है। So this is the missing factor, right? Thank you so much.